Hello friends, so welcome to my new videos. So in this video we are going to learn about seventh chapter, that is tax in India. And we know there is two types of India in almost every country. One is direct tax and another is indirect tax. So GST is the indirect tax. Okay. So before this, I will tell you, we have created the content from the Tally Education as per the Tally Education portal. So I hope you will support my work. So request you to, who have not seen my videos, please go and watch my previous videos also, and support us as much as possible from your side. So in the first chapter we learned about uh, fundamental of fundamental of accounting and accounting assumptions and all the basic things, accounting cycle, accounting rules, debit and credit rules. Okay, then second chapter we have learned about introduction to Tally Prime. So in this we learned what is Tally, where we can use the Tally, and what are the features of Tally. You have 11 features in Tally. So after that, second class we learned about maintaining charts of account in Tally RP9 and Tally Prime. And our next chapter was maintaining the stock keeping unit. Maintaining stock keeping unit. So in that we learned about the group, we learned about stock item, stock category. So after that we have learned about regarding the transactions in Tally. Tally में transactions को कैसे रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के लिए क्या क्या चाहिए. फिर हमने देखा है अकाउंट्स पेएबल एंड अकाउंट्स रिसीवेबल. व्हाट इज अकाउंट्स पेएबल एंड व्हाट इज अकाउंट्स रिसीवेबल. सो अकाउंट्स पेएबल हमारा क्या होता है, अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होता है, ये भी हमने डिटेल्स में चेक कर लिया है. अब उसके बाद में हमने फिर देखा है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, that is MIS report. So MIS report, software to software, it will be different, but basic report will be same. So we have checked in the Tally what are the MIS reports are available that we can use. So today we will look into the goods and service tax, that is GST. So I will just show you for Tally education content. We have already bought, or we have already purchased the Tally education content, and same we are promised to give to our friends who want to make their career in accounting, taxation and Tally. So here in Tally essential, you will see, I will just drill down, drill down. Recording transactions, fundamental of accounting, and after that maintaining charts of account. You can compare my content with the same fundamental of accounting. So we have learned about fundamental of accounting, and introduction to, second chapter is introduction to Tally Prime. So here is the introduction to Tally Prime, and the next chapter is the maintaining charts of accounts. So in maintaining charts of account we have learn about the details. After that, maintaining the chart of accounts in Tally Prime. After that we have third chapter we have learned about maintaining stock items or stock groups. Then recording the transactions. Here recording the transactions is there, so we have learn about the recording the transactions chapter 4.
So each and everything we have been giving you the content as per the Tally Education or Tally portal. Okay. So if you want, you can buy the Tally or you can watch our videos and you can support our work. And after that, fifth chapter is our goods and service tax. So goods and service tax we will see today's videos. Accounts payable we have done, and management information system. I think here it is not there in the Tally, but it was needed, so we have given the same. Accounts payable is there, accounts receivable is there, tax compliance is there. So today we are just go through this goods and service tax. So I have already make the content as per the Tally Education. So you can see this GST word. So we are taking one scenario, we are taking one business that is more practical than training. So as per this content, we will look today's videos. So I hope you will enjoy the videos and I will suggest you to like our content. So we are going to create a company. So here I am just going to this. So my company name is Lulu Supermarket. Lulu SUPER Super MARKET Market. So we can copy paste also and we can type also. So my company name is Lulu SUPER Super MARKET Market. लुलू सुपर मार्केट. लुलू थोड़ा नेम अजीब सा है. In our local, Lulu means something else. If you know what is Lulu called in our village side, you just comment us. So Lulu Supermarket, here PRADESH Uttar Pradesh, INDIA India. State is our Uttar Pradesh, UT. उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है. पिन कोड 2212 टेलीफोन नंबर हम दे देंगे. इसमें टेलीफोन नंबर है नहीं है. मोबाइल नंबर 1234567891 फैक्स नंबर जरूरत नहीं है. ईमेल आईडी है इधर. अकाउंट्स कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे. वेबसाइट भी दिया हुआ है www.lulusupermarket.com. वेबसाइट भी पेस्ट कर देंगे. कंपनी स्टार्ट फ्रॉम 23/24. अब इसको इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे. एक्सेप्ट करने के बाद में हम देखेंगे थोड़ा टाइम ले रहा है. एरर भी आ सकता है इसमें. मैं हार्ड डिस्क यूज कर रहा हूं. तो जब आप कंप्यूटर का लोकल हार्ड डिस्क नहीं यूज करते हैं, पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज करते हैं, तब आपको इस टाइप का एरर्स आ सकता है. तो यहाँ पे शो मोर फीचर, शो ऑल फीचर्स को हम यस कर लेंगे. इंटर जाके इंटर करेंगे और हमारा जो कंपनी स्टैच्यूटरी डिटेल्स है यहाँ पे आ जाएंगे. कंपनी स्टैच्यूटरी डिटेल्स. तो कंपनी स्टैच्यूटरी डिटेल्स हमारा टैली में देख लेंगे. इसको हम बोलते हैं टैक्सेशन को कंपनी स्टैच्यूटरी डिटेल्स. स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश है और ये हम रेगुलर डीलर हैं. एसएससी को यस रखना, नो ही रखना है. एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी. जीएसटी नंबर को हमको क्या करना है, जीएसटी नंबर इधर से कॉपी करके पेस्ट कर देना है. ये जीएसटी नंबर आपको गूगल में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए. जीएसटी नंबर के साथ में प्रैक्टिस कीजिए, बेस्ट रहता है. अब ये ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग का है, यूजर नेम और पासवर्ड. तो ये अभी हम
PITAL, ओनर कैपिटल। तो ओनर कैपिटल अकाउंट्स को हम यहाँ के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा, इंटर LUCKNOW, लखनऊ उत्तर प्रदेश। पिन कोड हम डाल देते हैं 22120222। पैन नंबर नहीं है और ये कैपिटल अकाउंट का GSTN नंबर नहीं होता है, तो इसको हम अननोन कर देंगे इंटर इंटर करके, और ये स्क्रीन को हम कर लेंगे सेव। 10 लाख है तो यहाँ पे 10 लिख के 5 जीरो लगा देंगे, 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे कैश में करंट बैलेंस आ गया और यहाँ पे भी कैपिटल में भी करंट बैलेंस आ गया। कैश का जो बैलेंस है वो डेबिट है और कैपिटल का जो बैलेंस है वो क्रेडिट है। STARTED, स्टार्टेड, BUSINESS, बिजनेस, WITH, विथ, CASH, कैश। अब सपोज हम अकाउंटिंग कर रहे हैं लुलु सुपरमार्केट का, एंड आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप इंग्लिश में भी वीडियोस देखें, सीखें, क्योंकि जहां भी इंटरव्यू आप जाएंगे तो हिंदी में इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, पूरा इंग्लिश में इंटरव्यू ले रहे हैं। तो यू ट्राई टू फोकस ऑन योर इंग्लिश, इंग्लिश कोशिश करें। हम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों बोलेंगे, ठीक है। आपको कौन सा बेस्ट रहेगा आप मुझे जरूर सजेस्ट करेंगे वीडियो बनाना। स्टार्टेड बिजनेस डिपार्टमेंटल, ये हो गया ट्रांजेक्शन्स। अब ये 2 अप्रैल को क्या है, कैश डिपोजिटेड इन द बैंक कंपनीज बैंक HDFC डिनोमिनेशन। अब HDFC बैंक में कुछ ट्रांजेक्शन्स कंपनी क्या करेगी, सुपरमार्केट क्या करेगा कि बैंक से ट्रांजेक्शन्स करेगा, कुछ ट्रांजेक्शन्स होगा तो कैश में होगा। तो यहाँ पे HDFC बैंक खोल के और मतलब पैसे जमा कर दिए हैं, तो हम इसका लेजर बना लेंगे। अब लेजर बनाना हम इसमें भी देख लेंगे, एक लेजर क्रिएट में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, कंट्रोल भी कर देंगे HDFC बैंक अकाउंट, इसको हम अंडर बैंक ले लेंगे। अकाउंट नंबर आपको डाल देना है, बहुत बड़ा नंबर हो गया। और उसके बाद में आपको IFSC कोड डाल देना है। यहाँ पे आपको जब लाइसेंस रहेगा तो बैंक का नाम आ जाएगा, बैंक का नाम ले लेना है और यहाँ पे आपका ब्रांच का नाम डाल देना है। अब इंटर इंटर करके जाएंगे, एड्रेस डाल देंगे, यहाँ पे GST नंबर दिया हुआ है तो GST नंबर डाल देंगे, नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम दूसरा ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, कैश डिपॉजिट इनटू कंपनी HDFC बैंक। HDFC बैंक कंपनी के HDFC बैंक में हमारा क्या हुआ है, कैश हमारा डिपॉजिट हुआ है HDFC बैंक में। तो यहाँ पे हम क्या एंट्री पास करेंगे, यहाँ पे हम कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे। क्यों कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे, क्योंकि अगर कोई ट्रांजैक्शन हमारा एक कैश लेजर से दूसरे कैश लेजर में फंड ट्रांसफर करेंगे, या एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड, अपने कंपनी का ही एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर करेंगे, तो उसके लिए जो वाउचर टाइप हम यूज करते हैं वो कॉन्ट्रा वाउचर यूज करते हैं। कौन सा, कॉन्ट्रा वाउचर। आप याद रखें, कैश टू कैश लेजर में फंड ट्रांसफर करना, या कैश टू बैंक लेजर में फंड ट्रांसफर करना, या बैंक टू बैंक में फंड ट्रांसफर करना, या बैंक टू कैश फंड ट्रांसफर करना, इस 4 टाइप के ट्रांजैक्शंस को क्या है कि हम कॉन्ट्रा वाउचर्स में रिकॉर्ड करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि जिस लेजर में जिस अकाउंट में पैसे आ रहे हैं उसको ऊपर रखना है,
तो हम एच डी एफ सी में हमारा पैसा आ रहा है तो एच डी एफ सी को ऊपर रखना है, और कैश से जो पैसे जा रहे हैं तो कैश को नीचे रखना है। कितना? 4 लाख रुपीस। 4 1 2 3 4। इंटर इंटर एंड एक्सेप्ट। डिनोमिनेशन इधर है तो इधर डाल देना है 2000 इंटू 200। ये हमारा 224। टोटल अमाउंट कैन नॉट ग्रेटर देन द एलोकेटेड अमाउंट। हमने यहाँ पे 40,000 डाला है, गलती हो गया है, तो यहाँ पे हमको एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये जीरो दशमलव के बाद में बढ़ाना है। 40 लाख हो गया। कैश नेगेटिव है, बता दिया। 4 1 2 3 4 5 4 लाख हो गया। अभी डिनोमिनेशन हमारा करेक्ट मतलब ये बराबर हो गया, मैच हो गया। वैसे तो 2000 के नोट बंद हो गए हैं, ठीक है, लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए डाल दे रहे हैं। टैली में भी अभी इसको नहीं हटाया है, टैली में भी हटा देना चाहिए। हो सकता है कि दोबारा से 2000 का नोट आए, इसके लिए वेट कर रहे हैं टैली वाले। अब इंटर इंटर करके इसको सेव कर लेना है। ये ट्रांजेक्शन हमारा 1 अप्रैल में ही हो रहा है। ठीक है, इंटर इंटर करके सेव कर लिया। अब जो ट्रांजेक्शन हम पास कर रहे हैं ये हमारा काम क्या है? जर्नल एंट्री ही है, जर्नल एंट्री। लेकिन हमारा जो फॉर्मेट है ये वाउचर मोड में नहीं है, डेबिट क्रेडिट मोड में नहीं है, लेकिन हमारा जर्नल एंट्री है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि हमारे एंट्रीज जो है वो लेजर्स में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो लेजर्स में चेक करने के लिए हम डिस्प्ले, मोर रिपोर्ट, अकाउंट्स बुक और लेजर बुक, यहाँ पे जाके बैंक बुक। तो बैंक में क्या है? डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, जो कि करेक्ट है, बैंक हमारा डेबिट होता है। ओनर्स कैपिटल क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, करेक्ट है, क्रेडिट होता है। कैश हमारा अगर रिसीव हो रहा है तो डेबिट, अगर पे कर रहे हैं तो क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारा कैश बैलेंस भी करेक्ट दिखा रहा है, रिसिप्ट हुआ तो डेबिट और कैश कंपनी से गया तो क्रेडिट। अब डेबिट बैलेंस में हमारा 6 लाख रुपया दिखा रहा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स के ऊपर बिजनेस के अंदर। ये हम अकाउंटिंग कर रहे हैं लुलु सुपरमार्केट का। किसका? लुलु सुपरमार्केट। अब कन्वेयंस चार्जेस पेड 300 रुपीज इन कैश। कन्वेयंस चार्जेस लुलु सुपरमार्केट ने दिया है, चाय साई का हो सकता है या किसी का भी हो सकता है। तो इसका पेमेंट किया है, तो पेमेंट में जाए, वो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद में पेमेंट में जाएंगे। पेमेंट में ऊपर हम ले लेंगे कैश लेजर और उसके बाद में नीचे ले लेंगे कन्वेयंस। तो यहाँ पे कन्वेयंस का लेजर ही नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे? कन्वेयंस का लेजर बना लेंगे, कन्वेयंस चार्जेस का लेजर बना लेंगे। तो यहाँ पे हम क्रिएट में जाएंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इस एक्सपेंसेस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको हम नॉट एप्लीकेबल ले रहे हैं। अगर यहाँ पे एप्लीकेबल रखेंगे तो हमारा कंपलसरी उधर जीएसटी लेजर लेना पड़ेगा, नहीं तो ये ट्रांजेक्शन हमारा जीएसटी रिपोर्ट में मिसमैच में चला जाएगा। इंटर इंटर करके इसको सेव कर लिया हमने। कितना रुपया? 300। तो 300 हमने यहाँ पे डाल दिए। कौन से डेट में है एक बार चेक कर लेते हैं। 1 अप्रैल में ही है, 1 अप्रैल में ही है। इंटर करके हमने इसको कर लिया, एक्सेप्ट हुआ। ठीक है, अब उसके बाद में फिर 1 अप्रैल को क्या है, ये हम 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 1 में, 2 में इसलिए ले रहे हैं कि आपको पता ही होगा कि टैली में जो है एजुकेशन मोड में सिर्फ 1st, 2nd और 31st ऑफ एवरी मंथ को ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करेगा, इसके अलावा एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपके पास कोई टीडीएल या कस्टमाइजेशन हो जिसका डेट चेंज हो जाए तो प्लीज हमको कमेंट में जरूर रिफर करें। मुझे कोई टीडीएल या कस्टमाइजेशन चाहिए कि हमारा टैली का जो है वो डेट चेंज होना शुरू हो जाए। कन्वेंस चार्जेस हो गया। कैश पे टुवर्ड्स द रिफ्रेशमेंट चार्जेस। अब रिफ्रेशमेंट चार्जेस के लिए भी क्या है, कैश पे किया है। कितना? 500 रुपीज। तो सेम पेमेंट एंट्री, पेमेंट थ्रू कैश है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कैश
और उसके बाद में यहाँ पे हमारा लेजर लेंगे रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट नहीं है तो हम क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट में जाके कंट्रोल वी। और ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। इज जीएसटी एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, इंटर इंटर करके इसको हमने सेव कर लिया। और कितना है 500 रुपीज अमाउंट, 500 रुपीज हमने अमाउंट भी दे दिया है। अब इसके बाद में हम जाएंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस में, देख लेते हैं कौन से डेट को हमने पास किया है। तो इसका जो डेट है वो डेट हमने पास किया है 1 अप्रैल को ही है। ठीक है, करेक्ट है 1 अप्रैल को। तो इसको हम सेव कर लेंगे और या तो फिर बोलेंगे कि एक्सेप्ट हो गया। अब ये एक्सेप्ट होने के बाद में दोबारा से जाके देखेंगे हमारा क्या है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस क्या है। कैश पेड टुवर्ड्स प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीदा है। परचेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आइटम, इसको हम यहाँ पे परचेस भी बोल सकते हैं। परचेस एंड कैश पेड टुवर्ड्स प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो कंपनी के अंदर जरूरत होती है, कैलकुलेटर, पेंसिल, पेन, फोटो कॉपी, ए साइज, ये सब हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आता है। तो इसका हमने परचेस करके क्या किया है कि पेमेंट कर दिया है 700। तो इसको हम डायरेक्ट पेमेंट में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और परचेस इनवॉइस रिकॉर्ड करके उसके बाद में भी हम उसको क्या कर सकते हैं, पेमेंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इसको हम एक बार क्या करेंगे कि परचेस में रिकॉर्ड कर लेंगे। अभी हम कैश परचेस में ले रहे हैं तो यहाँ पे कैश लेजर ले लेंगे और यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा अंडर परचेस। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल, क्योंकि अभी और भी ट्रांजैक्शन हमको पास करने हैं। अब नेम ऑफ आइटम यहाँ पे नहीं आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा अकाउंट चेंज मोड कर लेंगे क्योंकि ये हमारा इन्वेंट्री नहीं है, ये हमारा अकाउंटिंग है। तो एक जगह अकाउंटिंग ले लेंगे और यहाँ पे देखेंगे हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का लेजर नहीं आ रहा है तो क्रिएट कर लेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये भी हमारा एक किस्म से क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इस पे जीएसटी नहीं है तो हम नॉट एप्लीकेबल कर देंगे और यहाँ पे हम अमाउंट डाल देंगे कितना, 700 रुपीज। बहुत ही सिंपल वे में बनाया है ये ट्रांजैक्शंस। ठीक है, आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। उसके बाद में आप एडवांस ट्रांजैक्शंस में आप धीरे धीरे आप ग्रो कर जाएंगे। अब इसको हम कौन सा डेट में है देख लेंगे, 1 अप्रैल को ही है, इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया इंटर मार के। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, 2 अप्रैल को कैश डिपॉजिटेड इन द कंपनी HDFC बैंक 2000 रुपीज 250 नोट कैश डिपॉजिट हो रहा है। तो इसके लिए हमको पता ही है कॉन्ट्रा एंट्री पास करना है, आपको कॉन्ट्रा एंट्री पास करना है। तो 2 अप्रैल को ये ट्रांजैक्शन हो रहा है तो टैली में आ जाएंगे, टैली में आ जाएंगे, टैली में हम चले जाएंगे कॉन्ट्रा वाउचर में। कॉन्ट्रा वाउचर्स में हम ले लेंगे क्या, HDFC बैंक में डिपॉजिट हो रहा है कितना, 2000 का 250 नोट, 2000 का 250 नोट यानी कि 5 लाख कैश हमारा जा रहा है तो क्रेडिट में हो जाएगा 5 1 2 3 4 5। Denomination is 250 notes, enter and accept. This is the 2 April to be change the date pressing Alt F2,
2 अप्रैल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या है? कन्वेयंस चार्ज पेड सेकेंड अप्रैल, कन्वेयंस चार्ज पेड कैश इन 200। अगेन कन्वेयंस चार्ज पेड, पेमेंट कैश और कन्वेयंस CON कन्वेयंस चार्ज। पहले पहले 300 पे किया था, अभी कितना पे कर रहे हैं? कन्वेयंस 200 रुपया कन्वेयंस चार्ज। 2 अप्रैल को यहाँ पे डेट चेंज कर लेंगे। आप डेट चेंज करना आपको सीखना है। PRINT प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है कितना? 300 रुपीज। 2 अप्रैल को ही है। APR अप्रैल इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक 2 अप्रैल ले लेगा। अब ये हमारा ट्रांजेक्शन सेव हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या है? Bought computer for billing from the locals and paid the amount via cash. Local supplier, local vendor, VENDOR, local vendor। लोकल वेंडर्स ने क्या किया है? कंप्यूटर परचेज किया है। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे परचेज वाउचर में एंड पेड थ्रू कैश किया है। ये हमारा बिल हो जाएगा सेकंड बिल। और यहाँ पे कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश लेजर ले लेंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पे ले लेंगे क्या? कंप्यूटर अकाउंट। कंप्यूटर हमारा रहेगा एसेट्स, फिक्स एसेट्स के अंदर रहेगा। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे और क्रिएट में कंप्यूटर का अकाउंट बनाइज और परचेज, इंटर स्टेट सप्लाईज और परचेज। पार्टी इज फ्रॉम स्टेट इट्स सेल्फ। अब यहाँ पे अगर हम GST लेजर्स बनाएंगे, ये हमारा इंटर स्टेट है तो यहाँ पे GST नहीं रहेगा, तो इसके लिए हम GST लेजर्स नहीं ले रहे हैं। अब इंटर करके कौन से डेट में परचेज किया है? ये सेकंड को ही है, तो इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्या है? बाउट प्रिंटर फ्रॉम इप्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड पेड अमाउंट वाया HDFC डेबिट कार्ड। इनपुट GST एप्लीकेबल। अब यहाँ पे इनपुट GST है ऑन प्रिंटर। रिकॉर्ड दिस वाउचर थ्रू द जर्नल वाउचर प्रिंटर 5000। इंटर स्टेट, अब ये पहले हमारा लोकल परचेस था, लोकल परचेस यानी कि इंट्रा स्टेट परचेस। अब ये हमारा क्या है? इंटर स्टेट परचेस। इंटर स्टेट परचेस यहाँ पे कुछ और डिटेल्स दिया हुआ है। इंटर स्टेट परचेस, तो इसको मान लेते हैं ये पार्टी हमारा कहाँ है? हरियाणा। HAR हरियाणा। ये पार्टी हमारा हरियाणा का है। इसका एक हम GST नंबर निकाल लेते हैं हरियाणा का। हरियाणा का हमारा GST नंबर ले लेंगे। HAR हरियाणा GSTN नंबर। यहाँ पे ये हमारा हरियाणा का GST नंबर आ गया है। सपोज
कोई भी नंबर हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम जो गूगल से लेंगे उसमें एरर नहीं दिखाएगा वो, ठीक है ना। तो ये हम हमारा डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं, जीएसटी डॉक्यूमेंट्स में, और इसको पे कंट्रोल वी कर देते हैं। अब हमारे टैली में आ जाते हैं, तो ये हमारा टैली ओपन हो गया है। अब टैली में हमारा ये क्या हो जाएगा, थर्ड परचेस हो जाएगा। कौन से डेट को परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम परचेस कर रहे हैं 2 अप्रैल को ही परचेस कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा आप देखते रहिए जीएसटी। अभी जो हमने जीएसटी इनेबलमेंट हो गया है, जीएसटी टैक्स डिटेल डालने का है, तो वो कंपनी में हमने जीएसटी का जो टैक्स डिटेल है वही नहीं डाला है। उसके बाद में हमने इंट्रा स्टेट परचेस किया है। इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई जो परचेस किया है वो क्या है, लोकल डीलर से हमने कंप्यूटर परचेस किया है विदाउट जीएसटी। और उसके बाद में इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, ये अभी हम बाद में करेंगे। अभी इंटर स्टेट सप्लाई में हम क्या कर रहे हैं, इंटर स्टेट सप्लाई में हमने इप्सन से कंप्यूटर परचेस किया है। अब यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ पे हमारा परचेस किससे कर रहे हैं, क्रिएट करेंगे। हाँ, इस वाउचर में क्या बोला है कि जर्नल वाउचर से रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शन, थ्रू जर्नल वाउचर। अब ये जर्नल वाउचर से हम रिकॉर्ड करके देखेंगे ट्रांजैक्शंस। तो गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे हम, गेटवे ऑफ टैली से वाउचर्स में जाएंगे, F7 में जाएंगे। ये हमारा जर्नल वाउचर आ गया। F12 में हम इसको डेबिट क्रेडिट मोड में इनेबल कर लेंगे। तो हम क्या परचेस कर रहे हैं, हम प्रिंटर परचेस कर रहे हैं। तो प्रिंटर अकाउंट ले लेंगे, डेबिट क्रिएट। ये हमारा कानपुर का है पार्टी, क्रिएट कर लेंगे PAKTS पैकेट्स। यहाँ पे PA पैक्स, PAKCS पैक्स। इसको इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जीएसटी HSN नंबर डाल देंगे और यहाँ पे रेट डाल देंगे। तो ये हमारा टैक्सेबल है, और कितना परसेंट है, 5% टैक्सेबल है। तो इंटर करके हम इसको सेव कर लेंगे। कितना, 100 पैकेट ले रहे हैं हम, ठीक है। 100 नंबर्स या पैकेट ले रहे हैं, 30 के ईच। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 100, और ये हम डाल देंगे 30 का ईच, 30, 3000 हो गया। यहाँ पे रेट ले लिया, और यहाँ पे HSN भी आ गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आइटम हमारा है कैशू नेट। कैशू नेट 200 ग्राम, इसको हम एक दे देंगे 200 ग्राम। 200 ग्राम। दिस इज नॉट 2000, 200 ग्राम। 200 पैकेट, 200 ग्राम या 200 नंबर्स वी कैन, PPLIES। इसको परचेस हम इसलिए नहीं बोलते हैं, लोग सप्लाईज बोलते हैं, इसलिए क्योंकि जीएसटी जो है, तो जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो सप्लाई कहाँ हो रहा है उसके ऊपर बेस्ड ऑन टैक्स कैलकुलेट होता है, तो इसके लिए हम इसको सप्लाईज बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या है, इनपुट। इनपुट यहाँ पे हमारा टैक्स लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कंट्रोल V, इनपुट CGST, जिसे हमको पता ही है कि CGST और SGST कैलकुलेट होता है। CGST @
2.5%. 2 point input CGST 2.5% under duties and taxes GST इनपुट CGST। तो इसको GST ले लेंगे, इंटर करके सेव कर लेंगे। हमारा GST कैलकुलेट हो गया है। और एक लेजर बनाएंगे इनपुट SGST, इनपुट SGST 2.5%। तो ये जो इतना भी हमारा GST का रेट रहेगा, लोकल जब हम परचेस या सेल करेंगे तो वो दो में डिवाइडेड हो जाएगा, 50% CGST, 50% SGST। और अगर हमारा इंटर स्टेट सेल या परचेस है तो हमारा IGST टोटल टैक्स आएगा, इसमें कोई CGST SGST नहीं होगा। GST अब यहाँ पे हम ले लेंगे परचेस के ऊपर जो हम पे करते हैं GST उसको इनपुट बोलते हैं, सेल्स के ऊपर जो हम GST कलेक्ट करते हैं उसको आउटपुट बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया इनपुट यस GST। तो ये यस एंड यूनियन टेरिटरी में आ जाएगा। इंटर करके सेव कर लिया। उसके बाद में हमारा और यहाँ पे कंट्रोल A करेंगे एनालिसिस के देखने के लिए, और यहाँ पे ऑल्ट F1 करेंगे डिटेल में देखने के लिए। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारा 99% ये कैलकुलेट हो गया है, और ये 2.5 ये कैलकुलेट हो गया है। और इसमें हमारा जो लोकल परचेस है नील रेटेड, इस पे कुछ भी नहीं टैक्स है। मिल्क के ऊपर 5% है, ये देखिए मिल्क का डिटेल है। और उसके बाद में ये 200 ग्राम कैशू नट के ऊपर हमारा 99% GST है, तो ये यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। ई वे बिल डिटेल में हमारा डिस्पैच फ्रॉम ये डिटेल्स दिया हुआ है। कानपुर टू लखनऊ डिस्पैच फ्रॉम CANPUR कानपुर, शिप टू LU मॉल LUCKNOW लखनऊ, नॉन ट्रांसपोर्टर ID 101010 और बाया रोड, व्हीकल नंबर आ गया, रेगुलर आ गया, ठीक है। इंटर करके इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। अब ये हमारा क्या है, पेजअप कर लेंगे। ये हमारा लोकल परचेस है, लोकल परचेस। ये हमारा पार्टी है, पार्टी डिटेल में पार्टी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से हमने स्टोरेज फ्रीजर परचेस किया है 2 अप्रैल में। तो वाउचर्स में चले जाएंगे, सॉरी अकाउंटिंग, वाउचर्स में चले जाएंगे। वाउचर्स में जाने के बाद में परचेस पे क्लिक करेंगे। परचेस में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम डिटेल्स डाल देंगे, कब परचेस कर रहे हैं, 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को पेमेंट किससे करेंगे हम, पार्टी कौन है हमारा, सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड, सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड। कंट्रोल V, सैमसंग प्राइवेट लोकल रजिस्टर्ड। ये हमारा क्या है, लोकल SGST CGST SGST।
ये क्या है हमारा 18% का है। यहाँ पे हम और एक लेजर बना लेंगे। इससे पहले वाले लेजर्स में हमने 2.5% ही लिया था। यहाँ पे हमको क्या करना है, और एक लेजर बना लेना है। इनपुट जीएसटी, कंट्रोल वी, ये हमारा हो जाएगा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी 9% @9%, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी सीजीएसटी। इसी तरीके से यहाँ पे और एक लेजर बना लेंगे हम। इनपुट यस जीएसटी @9%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी यस जीएसटी। अब यहाँ पे हम एक बार Alt A प्रेस करेंगे। Alt A प्रेस करने के बाद में Alt F1 प्रेस करेंगे, और यहाँ पे 20 के ऊपर 18% जीएसटी हमारा क्या है, कैलकुलेट हो रहा है। तो ये करेक्ट है। इंटर एस्केप करके इंटर करके इसको हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। कौन से डेट में पास किया है हमने, 2 अप्रैल को। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन है सेल्स का। OUT आउट, WORD आउटवर्ड्स सप्लाईज, SUPPLIES सप्लाईज। इससे पहले जो हमने देखा है वो क्या है, आउटवर्ड्स सप्लाई। इससे पहले हम जो देख रहे थे इनवर्ड सप्लाईज था वो। ये सारा हमने इनवर्ड सप्लाईज में किया है। इन WORDS इनवर्ड्स, SUPPLIES सप्लाईज, इनवर्ड सप्लाईज। इनवर्ड सप्लाईज। तो हमारा क्या आया, आउटवर्ड सप्लाईज सोल्ड राइस 5 kg बैग टू कस्टमर लोकल वाया कैश 18% @350 पर BAG बैग, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाईज, outward supply. Okay, outward intra-state. So we will record in sales. I will select sales voucher. I will change the date. Uttar Pradesh, UP, Upper East,
ये गलत हो गया यार। UTTER उत्तर, APR अप्रैल 22। Now tax should be calculated. उत्तर प्रदेश, प्लेस ऑफ सप्लाई इज उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट हो गया है हमारा, इंटर करके इसको हम कर लेंगे सेव। नेक्स्ट है हमारा सोल्ड कैशू टू डी मार्ट, सोल्ड कैशू टू डी मार्ट वाया कैश एंड कलेक्टेड GST, आउटपुट GST। तो यहाँ पे से 1 मई को ही हमारा एक ट्रांजेक्शन और हो रहा है सेल डी मार्ट को। पार्टिस हमारा क्या है, डी मार्ट, डी मार्ट, MART, डी मार्ट, इंटर STAT स्टेट, इंटर स्टेट सप्लाईज है, ठीक है। इंटर स्टेट सप्लाई, यहाँ पे हमारा सेंट्री रेटर्स, ये हमारा है आंध्रा। इनपुट, इनपुट GST 2%, इनपुट GST, इनपुट इनपुट yes GST, इनपुट C GST, इनपुट yes GST, इनपुट इनपुट C GST 9%, इनपुट yes GST 9% और इनपुट I GST 18%। इसको हम करेक्ट कर लेंगे, इनपुट I GST 18 एट द रेट 18%, एट द रेट 18%। ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST I GST। अब ये अलग अलग GST लेजर्स रहेगा, तो यहाँ पे हम GST का परसेंट भी डाल सकते हैं, 18%। इसी तरीके से हम यहाँ पे दोबारा से टैक्स रेट डाल देंगे 2.5%, 9% GST और उसके बाद में 18% GST, 2.5%, उसके बाद में ये हमारा 9%, आउटपुट GST में 2.5%। ये अगर हम एक ही लेजर में अगर हम मल्टीपल टैक्स लेंगे तो यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पे 18% IGST आउटपुट में, यहाँ पे हम ले लेंगे IGST है तो 5%, आउटपुट 2.5% और यहाँ पे ले लेंगे 9%। तो ये सारे हमारे GST के लेजर करेक्ट हो गए हैं अभी। अब अपना ट्रांजैक्शंस में आ जाएंगे। 5% इंट्रा स्टेट, ये हो गया है हमारा, ये हम लिख लिए थे आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश का हमारा 18% है, आउटपुट GST 18%, ये हमारा हो जाएगा IGST। तो यहाँ पे हम CGST देखेंगे, आउटपुट CGST कैलकुलेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। OUT फ्रॉम फॉर्च्यूनर, परचेस अकाउंट, we will select milk 1 packet, we will select 1 packet cashew nut
and we will select, we are suppose it was damaged, so we are returning the goods. Rice bag 1 packet, or we can take 5 packet. How much? 50 is there na, so I will take 5 packet, and here I will take 5 packet, because it was damaged, so we are returning the goods. 5 packets. Purchase return. I think if we take 10, then it will be fine. Okay, no problem. Keep as it is. 5 packets. We are returning the goods. So earlier we have paid the goods, so we will pay. Earlier we have paid the GST, so we again take the return back of GST. So it is input CGST 2%, input SGST 2%, and input 9% GST, input CGST, input SGST 9%. This is the sales return. Supplier debit credit note number, date MAY May, against reference, enter and save. Next is sales return. Sales return is nothing but the credit note. So we click on other voucher. We will select credit note. Customer is returning to us. Cash sales. So in cash sales, suppose we are getting one pack damage packet or expiry packet. Again milk 200 gram, cashew 1 packet, and rice bag 1 packet. Then we select output 2.5% GST, OUT output 2.5% SGST, OUT output CGST 9%, OUT output SGST 9%. Enter and save. So we recorded all these transactions. Supplier invoice inclusive of GST. Inclusive of GST is nothing but in F12 there is option modify MRP. We will make it yes. We will make it yes. So here is one option, tax detail MRP. For cash it will not come. For credit parties it will come. So I will show you in other option. This is credit note na. Control yes, save it. So in sale F12 here is option F12, so all detail, rate inclusive of tax. So this is the inclusive of tax. You can select cash, registered, and you can select here cashew nut
one packet inclusive of sales is 40. Suppose inclusive of sales is 45 rupees. So your rate become 45. Or here if you give 40 rupees, so it will not take 50 rupees inclusive of tax. Enter OUT output CGST OUT output yes GST. Enter and save. This is called the inclusive of GST. So after learning the GST, we know how to configure the GST rate in ledger, how to configure the GST rate in stock item, GST rate in group, GST rate in stock item group, and GST rate at transaction level, exempted, nil rated, taxable. So now we will have some GST questions here. What is the input GST available for the month of April? So input GST, it is nothing but the GSTR 3B, and output GST also we can see GSTR 3B. So we will go to the display more report, statutory report, GST report, GSTR 3B. So here no mismatch transactions is showing. You can see there is no mismatch. I will change the period from April